Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to start the new chapter that is the universe, right? तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे. हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का शेप होता है, राइट, एंड द वेरियस थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स. दीज आर सो फैसिनेटिंग टॉपिक. बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है. हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई अर्थ के बाहर क्या है. हर कोई ऐसा सोचता है, राइट. बट द थिंग इज़ कि हम लोग क्या कर सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ फैक्ट्स एंड द इन्वेंशन डिस्कवरीज अबाउट दैम. हम उनको अब स्टडी भी कर सकते हैं. वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू डू सो, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए एंड व्हाट इज़ देयर इनसाइड द यूनिवर्स. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. You all know that this topic is for the school examination as well as the Olympiad. So basically you can do the hard work, you can study this topic from the video lectures we are going to provide you, and then you can definitely going to crack your examination. Alright, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. What you can do is you can write the code TTV07 in the search box of the Telegram app. If you do so, 7 channel appear हो जाएगा 7th class के लिए. You can join the channel, you can access all the DPPs and study material, and you are going to also receive the notifications of the videos. So that would be so much beneficial to you all, right? Now see, this is the team which is putting so much effort so that we are going to provide you the quality lectures you deserve, and that is the main thing. तो हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ सके, एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस knowledge to you from Kota. That is the main important thing. And आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है that you are going to share these video lectures to everybody, every one of your friends. That is the most important thing. क्यों? क्योंकि these lectures are free for everyone. So if anybody जो कि अच्छी education नहीं afford कर पा रहे हैं, they can watch these video lectures, they can make themselves smart, they can crack all their goals they have set for themselves, and that is the most important thing, right? Then they can definitely going to study hard too. नाउ सी, इन अकॉर्डेंस टू दैट हमने जो आपको वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके साथ ही साथ हमने आपके लिए कुछ पैकेजेस भी प्रिपेयर किए हैं, एंड दीज पैकेजेस एक्चुअली आर ऑन दी आर वेबसाइट. सो टू एक्सेस देम you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website, you are going to get these type of packages, the full one and the test series. फुल वन में आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, द क्वालिटी लेक्चर्स, स्टडी लेक्चर्स जो आपको मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल यू आर गोइंग टू गेट, homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers. So you are going to get all such these things. You are going to get the lessons, the homework thing, the testing part, and all the things necessary you need to crack any examination in the full package. And in the test series, only the testing part, that is the bi-weekly quizzes, periodic test papers along with the video classes. So these are going to get you in the form of packages over there. Alright, if you want to buy them, then you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. So if you call us on this number, you are going to get all the necessary things here, right? You can get that. Now let's start the lecture 1, that is stars and Big Bang theory. So today we are going to talk about this, the stars and the Big Bang theory, right? Now a little bit of constellations also. So we are talking about all the necessary things we need to understand about the universe. Okay, now you need to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. ये हमारा last chapter है, right? So what you need to do is you need to revise more and more so that जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो हम भूले नहीं. That is the main important thing. ठीक है, so let's get started. Let's study the topic. तो basically जो सब topics हम लोग इस lecture में पढ़ने वाले हैं, that is the universe itself, stars, galaxies, Big Bang theory, classification of galaxies and constellations, right? So we are going to study all of these. ठीक है, now see, let's talk about universe. तो देखिए, यूनिवर्स इज द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ऑल द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. सो बेसिकली जो कुछ भी बाहर स्पेस में है, राइट, जैसे कि प्लैनेट्स, जैसे कि स्टार्स, जैसे कि ऑल द कॉमेट्स, ऑल द डस्ट, ऑल द गैसेस, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? दीज आर द फॉर्म विच आर गोइंग टू मेक द यूनिवर्स.
ठीक है. सो बेसिकली यूनिवर्स कोई चीज़ नहीं होती है. यूनिवर्स इज अ स्पेस जहाँ पर ये सब एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे स्टार्स, जहाँ पे गैलेक्सीज, जहाँ पे प्लैनेट्स, ठीक है, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड ऑल द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये जिस स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं उस स्पेस का नाम हमने बोला है यूनिवर्स. ऑलराइट, सो दैट मीन्स यूनिवर्स एक बहुत ही बहुत 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 बड़ा स्पेस है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम यूनिवर्स का स्टडी करते हैं, दिस इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. और जब हम एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनसे हम बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोप्स. टेलीस्कोप से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को देख सकते हैं. यू कैन इवन सी द रिंग्स ऑफ द सैटर्न. येस, इट्स ट्रू, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स, यू कैन चेक देम आउट, राइट, यूजिंग द टेलीस्कोप. तो ऐसा नहीं है कि हम एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, हम यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरीज और उनके इंस्ट्रूमेंट्स की हम किस तरीके से उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके यूनिवर्स की और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग स्टडी करते हैं इन दी एस्ट्रोनॉमी. Alright, let's move ahead and let's talk more about the universe. The vast, unbounded but finite surrounding space is called universe. Vast, बहुत बड़ा, unbounded, there is no boundary out there, but finite surrounding. लेकिन कुछ ऐसा है कि भाई वो finite है, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई infinite तक universe जा रहा है, ऐसा नहीं है. It is unbounded, true, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है. दैट इज कॉल्ड, इट इज़ दी अनबाउंडेड प्लेस. ठीक है, तो ये एक ऐसा स्पेस है, ऐसा जगह है जो कि बिल्कुल बाउंडेड नहीं है और बहुत सारे गैलेक्सीज एंड स्टार्स आर ओवर देयर, राइट, एंड इट इज़ अ फाइनाइट प्लेस. ऐसा नहीं है इनफाइनाइट है या फिर हम लोग जो है उसको बता नहीं सकते कि इसका साइज़ कितना है, ऐसा नहीं है. दिस इज़ फाइनाइट, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ साइज़ है. ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग. एंड दिस इज़ द स्पेस जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो भी बिना बाउंड्री के है. वी कॉल दैट एज द यूनिवर्स. ठीक है, लेट्स गेट अहेड. द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग. सब कुछ यूनिवर्स में आता है, जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार्स, planets, satellites, asteroids, comets, meteors and all other heavenly bodies. वो सब की सब किस में आती हैं, हमारे यूनिवर्स में आती हैं. मतलब जितनी भी चीज़ें उस स्पेस में एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वही क्या बन जाती है, दैट इज नोन एज द यूनिवर्स. ठीक है, अब देखिए, द स्टार्स, द सन एंड द मून, द प्लैनेट, शूटिंग स्टार्स आर सम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स. तो बेसिकली जो भी आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, दोज आर द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स. ऑलराइट, इसको आप फटाफट से नोट कीजिए. ऑलराइट, तो अब आपको ये बात पता चली कि यूनिवर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है. जैसे कि प्लैनेट, आप प्लैनेट को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, बट एक्चुअली में आप यूनिवर्स को एक ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते. आप स्टार को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, आप मीटियोर को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, बट यूनिवर्स इज़ अ प्लेस. जैसे कि यू आर गोइंग टू गेट लैंड, आप उसको एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, बट countries is a place. The name of a country, India, is a place. It is a place, right? It is not an object. India एक object नहीं है. That's how we can say कि universe एक कोई object नहीं है. It is the name of the space. उसका नाम हमने बोल दिया कि भाई जिस भी स्पेस में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस प्लेस का नाम हमने बोल दिया है यूनिवर्स. ठीक है, सो यूनिवर्स इज अ प्लेस जो कि अनबाउंडेड है. लाइक ये बहुत ज़्यादा फैलती जाती है. ठीक है, अनबाउंडेड, इट डज नॉट हैव एनी बाउंड्री. ठीक है, लेकिन इट इज़ फाइनाइट. ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है कि पता नहीं कितना बड़ा, ऐसा भी नहीं होता. इट इज़ फाइनाइट, राइट. तो लेट्स गेट अहेड एंड टॉक अबाउट द स्टार्स. अब हम स्टार्स के बारे में बातें करते हैं. सो देखो, स्टार, ये बात तो तुम्हें पता है, हमने लाइट चैप्टर में देखा था कि भाई जो स्टार्स होते हैं वो कैसे बॉडी होती हैं. वो हम बोल सकते हैं ऐसी बॉडीज होती है जो खुद लाइट देती हैं.
ठीक है। सो वी कैन से दैट कि वो कैसी बॉडीज हैं जो खुद से लाइट दे रही है, मतलब उनके अंदर खुद से लाइट बनती है, दे कैन बी टेकन एज द सोर्स ऑफ द लाइट, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. Now see, stars are self-lighted, whereas planets shine only when they receive light from the stars. The planets revolve around the sun. सो बेसिकली ये जो स्टार्स होते हैं ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रहती हैं, ठीक है. ये स्टार जो होते हैं वो हेवनली बॉडीज़ होती है, मतलब इतनी बड़ी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते. इवन आपको पता है सन जो एक खुद एक स्टार है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक खुद की लाइट होती है, सन से हमें लाइट मिलती है, राइट, दैट इज़ द मेन थिंग. तो जो सन है एक्चुअली में वो एक स्टार है ना. यू कैन चेक दैट आउट कि वो खुद का लाइट एक तो फॉर्म करता है, बहुत सारी लाइट एनर्जी हम तक पहुंचाता है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा होता है. सो स्टार्स क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो कि गैसेस की बनी होती हैं, जिनमें मेनली हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है. एंड दो स्टार्स हैव वेरी 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 हाई टेम्परेचर, इवन दे आर सो 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 बिग, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ओनली दे आर दे मेक देयर ओन लाइट, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओनली दैट टेम्परेचर वो हमको लाइट दे पाते हैं, ठीक है. एंड जो स्टार है वो कैसा है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट गिव्स लाइट, है ना, हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था. सो बेसिकली स्टार क्या करते हैं? खुद से लाइट बनाते हैं. दे हैव वेरी हाई टेम्परेचर और बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं, ये बहुत बड़ी होती है. इवन आपको पता है सन से भी बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हमको अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है. इन रियलिटी वी कैन से दैट. नाउ the apparent motion of the stars in the sky is due to the rotation of the earth on its own axis. हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टार्स हैं हमें रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं. मीन्स मतलब अगर आप लेट्स से आपने एक स्टार को मेंशन कर लिया स्काई में कि भाई इस स्टार को मैं कल भी ऑब्जर्व करूंगा, परसों भी ऑब्जर्व करूंगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये बात पता चलेगा कि ये जो स्टार्स है ना ये रोटेट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर सम टाइम दे रोटेट्स, ठीक है. दैट इज द मेन थिंग. एंड व्हाई डिड डू सो? अगर आप एक स्टार को आपने ऑब्जर्व कर लिया और 3 घंटे बाद आप चेकआउट करोगे तो आपको उसका पोजीशन ऑल्टर मिलेगा, चेंज मिलेगा. द रीज़न इज़ क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है. क्योंकि वो रोटेट कर रही है, डे एंड नाइट फॉर्म कर रही है, राइट. सो बेसिकली क्योंकि वो रोटेट कर रही है, दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको स्टार्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है. सो बेसिकली ये जो स्टार्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, इसीलिए ये पॉइंट साइज हमको नज़र आते हैं. बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल एक पॉइंट जहाँ से हमें रोशनी मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक चमकता सा हमको एक पॉइंट नज़र आते हैं स्टार्स, राइट. तो ये जो स्टार्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग. ऑल्सो ये स्टार्स आपको हमेशा मूव करते हुए दिखाई देंगे, सिवाय एक स्टार के, दैट इज़ द पोल स्टार. पोल स्टार आपको मूव करते हुए दिखाई नहीं देगा, आपको बाकी स्टार ज़रूर मूव करते हुए दिखाई देंगे. आपको स्टार्स की पोजीशन चेंज होते हुए नज़र आएगी, बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, ठीक है. दैट इज़ द मेन थिंग. और आपको पता है कि भाई स्टार्स की तो खुद की लाइट होती है तो वो चमकते हैं, बट प्लैनेट्स की तो खुद की लाइट नहीं होती है. दैट इज़ द मेन थिंग. इसीलिए वो हमको सिर्फ विजिबल होते हैं, उनसे लाइट हमें नहीं मिल रही होती है, वो सिर्फ विजिबल होते हैं. लाइट जो सनलाइट उनके ऊपर फॉल कर रही होती है किसी भी प्लैनेट के ऊपर, रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, एंड वी आर एबल टू सी दैट प्लैनेट, राइट. बट दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. दे डू रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल्स ऑन दैम, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है. नेक्स्ट देखिए पॉइंट. द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हमारी अर्थ कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट. इसी वजह से हमें ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए स्टार्स दिखाई देते हैं. क्यों और कैसे? ये बिल्कुल पता है किसके सिमिलर होता है. जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं. तो देखो जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो तो क्या होता है? ट्रेन आगे मूव हो रही होती है, ठीक है, तो आप ऐसे आगे मूव हो रहे होते हैं, आप आगे जा रहे होते हो. लेकिन अगर आप खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको क्या नज़र आता है? आपको नज़र आता है कि जो ट्रीज़ खड़े हैं, पोल्स खड़े हैं, घर, लैंड, वो सब पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. वो लैंड, वो घर, वो ट्रीज वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, आपको ऐसा विजिबल होता है कि वो पीछे जा रहे हैं, ठीक है. आप खुद आगे जा रहे होते हैं और ट्रीज वगैरह जो हैं आपको पीछे जाते हुए नजर आते हैं. सो बेसिकली दैट इज़ द मेन थिंग. और इसी की वजह से आपको स्टार्स भी मूविंग दिखाई देते हैं. एक्चुअली में स्टार्स अपना पोजीशन अभी चेंज नहीं कर रहे होते और इतनी फास्ट नहीं कर रहे होते कि भाई वो 3 घंटे में पोजीशन उनका चेंज हो जाए,
राइट लेकिन आपको 3 घंटे में उनका पोजीशन चेंज नजर आता है बिकॉज हमारी खुद की अर्थ रोटेट कर रही है एंड वी आर इनसाइड दैट अर्थ. हम अर्थ में हैं, ठीक है, अर्थ पर हम रहते हैं, दैट इज द मेन थिंग, और वो रोटेट कर रही है. दैट इज द रीजन कि हमें स्टार्स रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. अगर हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो हमें स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देते हैं. क्योंकि जैसे ट्रेन में जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तभी तो चीज़ें हमें बैकवर्ड जाती हुई दिखाई देती हैं, टोटली अपोजिट. बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही हमें स्टार्स जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी वजह से सन भी हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखता है. भाई सनराइज ईस्ट से होता है और सन वेस्ट से उसमें होता है, जो है वेस्ट में होता है, राइट. दैट इज द मेन थिंग. सनसेट वेस्ट में होता है, सनराइज ईस्ट में होता है बिकॉज हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. समझे? दैट इज द मेन थिंग जो कि हमें पता होना चाहिए कि भाई स्टार्स जो हैं वो इस तरीके से क्यों मूव करते हुए लगते हैं, बल्कि वो एक्चुअली में नहीं कर रहे होते हैं, वो तो बहुत 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 दूर होते हैं. इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि अगर वो मूव भी कर जाएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा. नेक्स्ट देखो, द पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी एंड डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ विच इज फिक्स्ड इन स्पेस एंड डज नॉट चेंज विद टाइम. सो देखो मैंने बताया था इकलौता एक स्टार पोल स्टार ऐसा है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता. वाई सो? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो पोल स्टार होता है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल ठीक हमारी जो रोटेशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमारी अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उसके ठीक सामने ऊपर होता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल ऊपर होता है. सो दैट इज़ द मेन थिंग. क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में होता है, उसके ओवरहेड होता है, वी कैन से दैट, उसको हम नॉर्थ के लिए बोल सकते हैं. तो बेसिकली वो क्या होता है, इसी वजह से हम लोग उसे कह पाते हैं कि भाई वो मूव नहीं करता. क्यों? क्योंकि अर्थ तो रोटेट उसी एक्सिस के अबाउट कर रही है ना. लेट मी टेल इट विद यू एन अ डायग्राम. ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ, तब आपको पता चल जाएगा. सो देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ अर्थ, ठीक है. सो दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है और लेट इट बी कि भाई दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट करती है. ठीक है, ये है वो एक्सिस जो कि टिल्टेड है एंड दिस इज द अर्थ जिसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये अर्थ रोटेट करती है. सो इस एक्सिस के बिल्कुल ठीक सीध में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हुए जो स्टार होता है उसे हम बोलते हैं पोल स्टार. अब क्योंकि हमारी पूरी की पूरी अर्थ तो ऐसे रोटेट हो रही है, सो वो वाला स्टार हमें कभी मूव नहीं करता हुआ दिखाई देता. वो हमें बिल्कुल एक ही एग्जैक्ट पोजीशन में मिलेगा आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर, नेक्स्ट डे, अदर नेक्स्ट देन द अदर डे. जितने भी दिन आप ऑब्जर्व करोगे आपको हमेशा वो एक ही पोजीशन पर दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि वो हमारी एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है. ठीक है, हालांकि वो दूर है, पॉइंट साइज है, बट वो हम उसी के स्ट्रेट लाइन में है. दैट इज़ द रीज़न कि हमें पोल स्टार, जिसे हम पोल स्टार बोलते हैं और इसका कई नाम है, पोलारिस भी बोलते हैं हम इसे, वो कभी भी मूव नहीं करता. समझे? तो इन पॉइंट्स को आप फटाफट से नोट कर लीजिए. ऑलराइट, अब आगे बढ़े, चलते हैं. अब देखिए, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द बिग बैंग थ्योरी. सो देखिए, बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या कहती है, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो यूनिवर्स, जो प्लैनेट, जो गैलेक्सीज अभी हैं, एक्चुअली में बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या थे, सबके सब एक जगह पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे. ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक ऐसी चीज़, कुछ ऐसा जिसमें सारे के सारे फोर्सेस, जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, वो सारे सुपर फोर्स में यू कैन से वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट था. ठीक है, तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल जो है, ना तो कोई एटम उस वक्त उस जगह पर था. ठीक है, लेट इट इवॉल्व वेरी मच, यू कैन से बहुत ज़्यादा डेंस था, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का था, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी फंडामेंटल फोर्सेस ओवर देयर. तो वो सुपर फोर्स बोल सकते हैं हम उसे, जो कि बहुत डेंस एंड हॉट था. एट दैट टाइम उसमें ना तो कोई एटम, ना तो कोई स्ट्रक्चर, यू कैन से ना तो कोई मॉलिक्यूल जो कि एग्जिस्ट उस वक्त करता था. ठीक है, उस वक्त ऐसा था. फिर एक ब्लास्ट हुआ. बिकॉज ऑफ दैट ब्लास्ट, उस छोटे से यू कैन से हम लोग बोल सकते हैं जो कंसनट्रेटेड एंड डेंस पार्ट था, वो फिर ब्लास्ट होने की वजह से दूर दूर तक ऐसे बिखर गया.
ठीक है, वो सेपरेट आउट होगा, स्प्रेड आउट हो गया पूरे जगह में। इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन में आए, ठीक है, वो बने, फॉर्म हुए, स्ट्रक्चर्स बने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बने, कुछ स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं था, सब कुछ एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड था। आफ्टर द ब्लास्ट दैट हैपन, एंड उसके बाद से क्या हो रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है जो भी उस अभी फॉर्म है, स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड ऑल दी अदर थिंग्स, वो अब क्या हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रही हैं, एंड दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, ठीक है। और इवन आपको पता है हमारी जो यूनिवर्स का टेम्परेचर है ना, वो भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पहले जितना था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जितना था, वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सो दिस थ्योरी वाज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी, जहाँ से स्टार्टिंग हुई, जहाँ से हर एक चीज़ की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, फ्रॉम द वेरी 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 स्टार्टिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है, उसे है बिग बैंग थ्योरी ऐसा बोलते हैं, माना जाता है ऐसा। सो देखिए, द होल ऑफ द मैटर ऑफ द यूनिवर्स वॉज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी डेंस एंड हॉट फायर बॉल अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसा कितने साल पहले हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा था कि भाई छोटी सी हॉट बॉल में सब कुछ कंसंट्रेटेड था, ठीक है, हॉट एंड डेंस छोटी सी बॉल थी जिसमें ना तो कोई एटम है, ना तो कोई मॉलिक्यूल है, ना प्लैनेट, स्टार्स, कुछ भी नहीं था, वो सिंपल एक छोटा सा कंसंट्रेटेड डेंस मटेरियल था, एक हॉट फायर था, ठीक है। एक्सपेंड हुआ कैसे, बाय द ब्लास्ट, एन एक्सप्लोजन अकर्ड, एक एक्सप्लोजन वहां पर आया, द मैटर वॉज ब्रोकन इन टू पीसेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। वो जो मैटर था जब वो स्प्रेड आउट हो गया, टूट के बिखर गया, वो स्प्रेड आउट हो गया, एंड देन वहां पर स्टार्स एंड गैलेक्सीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। द फास्टर मूविंग गैलेक्सीज हैव गॉन फार्दर दैन द स्लोअर वंस। जो गैलेक्सीज धीरे धीरे जाती थी वो तो अभी थोड़ा पास में ही है, बट जो ऐसी गैलेक्सीज होती है जो बहुत 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 ज़्यादा फास्ट मूव करती है, वो बहुत दूर चली गई हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, दूर दूर और फैलता जा रहा है, सब कुछ जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर फैलता जा रहा है। सो जो गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग थी, जिनको पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी वेलोसिटी मिली बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन, तो वो बहुत दूर चले गए, और जो ऐसी गैलेक्सीज है जो स्लोअर वंस है वो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं बिकॉज दे आर द स्लो वन। A galaxy situated at 20 billion light years is the boundary of the universe. ऐसी गैलेक्सी जो कि 20 billion years, 20 billion years, you can see the 20 billion light years जो है, ये वाली जो गैलेक्सीज है जो इतने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स, दैट मीन्स दैट इज द एंड ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन से। उसके अलावा यू कैन से देयर इज नो बाउंड्री अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि ये जो यूनिवर्स है उसमें जो गैलेक्सीज है उसका एंड पॉइंट कहाँ पे, मतलब अभी तक हम जो बोल रहे हैं कि भाई वो कहाँ तक है ये यूनिवर्स। सो बेसिकली 20 बिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस तक पे जो गैलेक्सी है वो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज दी, यू कैन से, ऐसा जगह जहाँ से अभी तक कोई आगे नहीं है, दैट इज द एंड ऑफ द यूनिवर्स, वी कैन से दैट। सो बेसिकली ये है बिग बैंग थ्योरी जो बताती है कि भाई यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, इतनी सारी गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई, ये स्टार्स वगैरह कैसे फॉर्म हुए, उसके अंदर जो डस्ट आ रही है, प्लैनेट्स बन रहे हैं, सैटेलाइट्स बन रहे हैं, दिस इज द रीजन कि भाई कैसे हुआ ऐसा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब देखिए 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज द मेन थिंग यू शुड नो। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ठीक है। एक साल में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, यूजिंग द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला, ठीक है। सो देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो देखो ये जो 1 लाइट ईयर है ना, 1 लाइट ईयर को हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, 1 लाइट ईयर ये है एक डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है उसे हम किस तरीके से बता सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो इफ यू वांट टू नो द डिस्टेंस, तो हम अगर लाइट की स्पीड को देखें और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे, यानी 1 ईयर में जितना टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दे, सो वी आर गोइंग टू गेट द लाइट ईयर डिस्टेंस, ठीक है। किस तरीके से हमको मिलेगा, लेट्स सी, देखो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हम किलोमीटर देख रहे हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर 5
किलोमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 3 × 10⁵ ये है स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। फिर देखो ईयर को तुम किस तरीके से सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हो, पूरे के पूरे साल में तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई देखो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द स्पीड, ये है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा है ना, ये डिस्टेंस कवर्ड है, नहीं दिस इज द टाइम, ठीक है। ये है टाइम जो कि पूरे साल में कितने सेकेंड्स होते हैं वो बताता है। कैसे बताता है, देखिए 365 डेज होते हैं हमारे 1 ईयर में, है ना, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। फिर हर दिन, एक दिन में 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि भाई पूरे साल में कितने आवर्स हैं। नाउ इसके बाद हमने ये देखा कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट द 60 मिनट्स। अब हम ये बात जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अब हमने इसको और मल्टीप्लाई किया 60 से, सो वी आर गोइंग टू गेट द टाइम, जो कि 1 ईयर के अंदर जितने सेकेंड्स होते हैं, तो हमें इससे पता चल गया, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो लाइट है वो कितने किलोमीटर पर सेकेंड में जो है मूव ऑन करती है, और इस डिस्टेंस को हम बताते हैं क्या, लाइट ईयर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। भाई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना टाइम मिलेगा, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर्स। ये जो किलोमीटर्स हैं, इतने किलोमीटर्स लाइट एक साल में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। यही किलोमीटर जिसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, ठीक है। जनरली ये जो डिस्टेंस होता है ये किस काम में आता है, जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी और नए प्लैनेट का डिस्टेंस, किसी और अदर गैलेक्सी का डिस्टेंस, कि भाई वो हमसे कितना दूर है, तो हम उस वक्त ये लाइट ईयर वर्ड या लाइट ईयर यूनिट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अ गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट, ठीक है। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी होती है कलेक्शन ऑफ द गैसेस, collection of the stars, collection of the all the solar systems and all. So basically galaxy के अंदर बेहद ज़्यादा stars रहते हैं, you can say 100 billion stars होते हैं, ठीक है, एक galaxy में। You can see that there are millions of galaxies in the universe. In fact galaxies are the building blocks of the universe, ठीक है। यूनिवर्स को बनाने के लिए गैलेक्सीज की जरूरत होती है, एज यू कैन से दैट। देखो जैसे हम लोग दीवार बनाते हैं, तो व्हेन वी मेक अ वॉल, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ वॉल, व्हाट वी डू, हम ब्रिक बाय ब्रिक उसको जमाते रहते हैं, अरेंज करते हैं, एंड देन वी गेट अ वॉल। Similarly, galaxies are the building blocks of the universe. By 1 galaxy, 2 galaxy, 3 galaxy and millions of galaxies form, arrange themselves and they are going to get the universe. So basically यूनिवर्स में बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं। हर एक गैलेक्सी के अंदर यू आर गोइंग टू गेट 100 बिलियन ऑफ स्टार्स, राइट। दैट इज द मेन थिंग। गैलेक्सी का मेन मतलब क्या है, बहुत सारे जो है स्टार्स का कलेक्शन, और ये किसकी वजह से बाउंड हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जितने भी यू कैन से जितने भी बहुत सारे स्टार्स हैं वो सब के सब एक ही जगह पे कलेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और उन स्टार्स के बीच में जो जगह होती है दैट इज फिल्ड बाय द गैसेस एंड डस्ट, ठीक है, जिनको हम इंटरस्टेलर गैसेस भी बोल देते हैं। ऑलराइट, नाउ मूव अहेड, हम आगे मूव करते हैं। लेट्स टॉक मोर। द नेम ऑफ अवर गैलेक्सीज इज द मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। The Milky Way is one of the millions of galaxies which exist in the universe. So basically that galaxy is one of the galaxies जो कि अभी millions of galaxies में exist कर रही है। It contains about 100 billion stars. The view of Milky Way galaxy looks like a disk of stars. ऐसा दिखाई देता है दूर से कि भाई वहाँ पे बहुत सारे stars हैं, disk of stars हैं एक तरीके से। और हमारी गैलेक्सी में यानी मिल्की वे गैलेक्सी में about 100 billion stars हैं। लिसन टू इट, 100 बिलियन स्टार्स, कितना ब्यूटीफुल है। आपको पता है ये हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे क्यों है, क्योंकि वो बिल्कुल मिल्की सी नज़र आती है। मिल्की मीन्स दूध के जैसे, थोड़ा दूधिया रंग होता है उसका, दैट इज नोन एज द मिल्की, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज द मिल्की वे। और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, इसे बोलते हैं हम आकाश गंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिल्की वे गैलेक्सी है एक स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल शेप की गैलेक्सीज होती है। देखो हबल नाम के जो एस्ट्रोनॉमर थे, देयर वाज एन एस्ट्रोनॉमर नेम्ड हबल, उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं तो उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, बेसिस ऑन देयर शेप, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, सो दे क्लासिफाइड दैट।
किस तरीके से उन्होंने किया, उन्होंने देखा कि भाई जो गैलेक्सीज होती हैं उनका अलग अलग शेप्स है, कुछ गैलेक्सीज का स्पाइरल शेप है, कुछ गैलेक्सीज का एलिप्टिकल शेप है, और कुछ गैलेक्सीज का इरेगुलर शेप है, मीन्स कोई भी कैसा भी अजीब सा शेप, कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं बोल सकते. सो ही क्लासिफाइड द गैलेक्सीज इनटू द बेस्ड ऑन देयर शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स. सो वैसे ही हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, दैट मिल्की वे गैलेक्सी इज अ स्पाइरल गैलेक्सी. ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी. इट मास इज 150 सोलर मासेस, दैट इज 3 into 10 की पावर 41 kg. सो हमारी गैलेक्सी का मास कितना है, 3 into 10 की पावर 41 kg उसका मास है, यानी कि 150 सोलर मासेस. ठीक है, दैट इज द सन्स मास. Now let's see the next point. The distance between the sun and the earth is about 15 crore kilometers. The light reaches from the sun to the earth in about 8.3 minutes. ये बात तो हमें पता है कि भाई sun से earth तक जो light पहुंचती है वो 8.3 minutes तक पहुंचती है, right? The next nearest star from the earth is about 4.3 light years away from it, known as Proxima Centauri. And ये भी ध्यान से देखिए, the brightest star Sirius is about 8.7 light years away from the earth. So देखो, अर्थ के पास में सबसे पहला, मतलब अर्थ के सबसे पास जो स्टार है वो कौन सा है, हमारा खुद का सन. ठीक है, सो बेसिकली ये जो सन है ये अर्थ के सबसे पास है. इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ठीक है, ये कितने दूर है, दिस इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. एंड उसके बाद एक सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है जो जिसे हम बोलते हैं सीरियस. ठीक है, उसका क्या इतना है, 8.7 लाइट ईयर्स अवे है वो हमारी अर्थ से. ठीक है, फटाफट से आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए. चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, दैट की जो न्यूट्रॉन स्टार होता है. देखिए, अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार एमिट्स रेडियो वेव्स एंड इज कॉमनली नोन एज पल्सर. सो बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो एक तरीके का स्टार है जो एग्जिस्ट करता है बेसिकली, और वो क्या करता है, रेडियो वेव्स को एमिट करता है. सो वी गॉट, ये तो सब बात सभी को पता है कि बाहर से, अर्थ के बाहर से बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, रेडियो वेव सिग्नल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, मिलते हैं. दोज रेडियो वेव सिग्नल्स आर एक्चुअली मे बी given by you, given to you definitely by a spinning neutron star, क्योंकि वो भी क्या करता है, रेडियो वेव्स को emit करता है. ठीक है, so this is the main you can say a fact which should be known by you. Now let's move ahead and let's talk about the constellation. So देखो, constellations का मतलब क्या होता है, constellations का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं हमारे नाइट स्काई में. अगर कोई स्टार, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स यू कैन से, वो एक स्पेसिफिक शेप में रहते हैं अगर, सो वी से दैम, वी मेक दैम और वी नेम दैम एज अ कॉन्सिलेशन, जिनका एक स्पेसिफिक नाम हम लोग रखते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज द कॉन्सिलेशन. सो देखिए, द स्टार्स विच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स के फॉर्म में जो है वो स्टार अपीयर होते हैं एंड फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल शेप, कुछ पहचानने वाली शेप्स को हम लोग बोल सकते हैं. एंड पैटर्न्स आर नोन एज द कॉन्सिलेशन. सो कॉन्सिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार, ऐसे स्टार जो कि कोई स्पेसिफिक शेप हमेशा बनाते हैं एंड वी नेम दैट शेप. ठीक है, हमको अभी तक 88 कॉन्सिलेशंस नोन है, मतलब हम लोग 88 शेप्स, रिकॉग्नाइजेबल शेप्स को जानते हैं. ठीक है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अभी आपको बताती हूँ कि भाई वो कौन कौन सी शेप्स हैं जो कम से कम आपको पता होनी चाहिए. सो देखिए, कुछ नाम जो हैं जो कि इजीली रिकॉग्नाइजेबल गैलेक्सीज कॉन्स्टेलेशंस हैं, जैसे कि अर्सा मेजर, ये आपको पता, और इसका नाम हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं. अर्सा माइनर, ठीक है, फिर देखिए जिसे हम लघु सप्तऋषि बोलते हैं, अरियन और स्कॉर्पियो. सो बेसिकली ये कुछ ऐसे कॉन्स्टेलेशंस हैं जो हमारी उसमें नाइट स्काई में एग्जिस्ट करते हैं. वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैम, मेक शेप आउट ऑफ दैम, वी कैन से. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द अर्सा मेजर. कैन यू सी द शेप हियर, दैट इज अ शेप ऑफ दिस वन. ठीक है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, these are the 7 stars. और जब उनको कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम विद द अदर स्टार्स, वी आर गोइंग टू गेट द अर्सा मेजर. इसे हम बोलते हैं ग्रेट बियर, क्योंकि देखो भालू की शेप का हमें नजर आता है ना, वी कैन मेक आउट. सो दैट इज द नेम why it is so called the great bear. Now see, one of the most famous constellation which you can see in the night sky is the Ursa Major. ठीक है, it is also known as the Big Dipper, the Great Bear or the Saptarishi. Saptarishi क्यों? Because there are the 7 stars, the group of the 7 stars you can say, right?
Now let's talk about it is because the Ursa Major constellation consists of 7 bright stars which are arranged in a pattern resembling somewhat a big bear. 7 स्टार्स इस तरीके से अरेंज होते हैं जो कि एक तरीके से आपको एक विजिबिलिटी दे रहे हैं ग्रेट बियर की, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ग्रेट बियर, द बिग डिपर, और यू कैन से द अर्सा मेजर. ठीक है, सप्तरी चीज को हिंदी में बोला जाता है. नेक्स्ट देखिए ओरियन. ओरियन आप देख रहे हैं एक हंटर की जैसे लगता है, मीन्स दिस इज अ पर्सन और उसके पास एक हंटर है. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का शेप आपको देता है. अगर आप इस शेप को पहचान पाते तो बहुत ही बढ़िया बात है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओरियन इज वन ऑफ द वेल नोन एंड मोस्ट इम्प्रेसिव कॉन्सिलेशंस. इसका स्पेसिफिक शेप आपको मिलता है. ओरियन इज ऑल्सो नोन एज द हंटर. हंटर के मतलब उसका नाम, दूसरा नाम भी हंटर बोलता जाता है. द इंडियन नेम ऑफ ओरियन इज काल पुरुष. ठीक है, जैसे हम काल पुरुष बोलते हैं इंडियन नेम हमारा. The Orion constellation consists of 7 bright stars and several faint stars. कुछ तो बहुत सारे bright stars है, 7 बहुत bright stars है, but कुछ faint stars है जो कि ज़्यादा visible नहीं हो पाते हैं. The 3 middle stars represent the belt of the hunter. These 3, 1, 2, 3, these 3 makes up the belt of the hunter. ठीक है. नेक्स्ट देखो, यू कैन ईजिली लोकेट द कॉन्सिलेशन इन द स्काई इन द लेट इवनिंग. डेफिनेटली यू कैन डू सो. सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, बिल्कुल करिए. ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम. ठीक है, कॉन्सिलेशंस को. और अगर आप बहुत ही ज़्यादा यू कैन से क्यूरियस है अबाउट दीज कॉन्सिलेशन, यू कैन नो मोर अबाउट दैम ऑल्सो. राइट. नेक्स्ट आप देखिए सिग्नस. ये जो सिग्नस है वो एक स्वान की तरह दिखाई देता है, एक फ्लाइंग बर्ड. ठीक है, और वो उस वक्त फ्लाई हो रही है. ठीक है, यू कैन सी मेक आउट द थिंग हियर, बहुत ही ज़्यादा फ्लाइंग है, बर्ड है. राइट, यू कैन से दैट, एंड दैट इज व्हाई इट्स नेम इज द सिग्नस. ठीक है, देखिए सिग्नस इज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टार्स विच फॉर्म्स अ क्रॉस like a swan. ठीक है, so basically it appears like a swan, that is why we call it Cygnus. ठीक है, so that is the main thing I want to tell you all. Now note this down. Cygnus को तो फटाफट आप नोट कर लीजिए. ऑलराइट, तो देखो आप लोग अब क्या कर सकते हैं. नाउ यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट द कॉन्सिलेशंस. नाउ यू नो द वेरियस फैक्ट्स अबाउट द स्टार्स, प्लैनेट्स. राइट, प्लैनेट के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे. राइट, नाउ यू नो द थिंग्स अबाउट द स्टार ऑल्सो. राइट, लिटिल बिट ऑफ थिंग आपको पता चला है कि भाई स्टार क्या होते हैं. दे आर द हॉट हेवनली बॉडीज, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. एंड डू यू नो दैट कि जो अलग अलग स्टार्स होते हैं बेस्ड अपॉन देयर टेम्परेचर दे हैव डिफरेंट कलर्स. यू कैन सी दैट. राइट, आपको अभी तो सारे नॉर्मल आपको ब्राइट दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं स्टार्स को तो आपको बहुत ही कलरफुल स्टार्स नज़र आएंगे. कोई पिंक को दिखाई दे सकता है, कोई ब्लू दिखाई दे सकता है. हमारा सन जो है वो एक येलो स्टार है बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. राइट, दैट इज़ द मेन थिंग. आपको अलग अलग चीज़ें, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको जो हमारी यूनिवर्स है उसके बारे में पता चल सकता है. इवन यू कैन गेट दैम अबाउट दी अदर थिंग्स अबाउट द नाइट स्काई. ठीक है, जैसे आपको ट्विंकलिंग क्यों दिखाई देती है स्टार्स की. सो बेस्ड ऑन दैट प्लैनेट आपको क्यों नहीं ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता. प्लैनेट हमारे काफ़ी पास है और जो स्टार है वो काफ़ी दूर है. ठीक है, तो स्टार्स की जो लाइट जो हम तक पहुंच रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर से गुजर के हम तक पहुंचती है. एंड यू ऑल नो दैट कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन की वजह से आपको हमेशा जो इंटेंसिटी मिलती है वो कांस्टेंट नहीं मिलती, क्योंकि विंड भी हमेशा ब्लो करती रहती है हमारी अर्थ पे. दैट इज़ द मेन रीज़न. जो इंटेंसिटी हमारे अर्थ में एज अ रिफ्रैक्शन यू आर गेटिंग वो इंटेंसिटी सेम नहीं होती ऑलवेज. इट इज़ नॉट कांस्टेंट. राइट, उसकी जो इंटेंसिटी है कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, एंड दैट इफेक्ट इज गोइंग टू गिव यू दी ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार्स. राइट, दैट इज़ द मेन थिंग, एंड दैट इज़ वाई हमको स्टार्स हमेशा ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं. बट प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, प्लैनेट्स एक तो बहुत ही पास होते हैं, एंड द मेन थिंग कि इसके प्लैनेट बहुत काफ़ी बड़े होते हैं. वी कैन से दैट दूर होने की वजह से स्टार्स हमें बिल्कुल पॉइंट साइज नज़र आते हैं. राइट, एंड डू यू नॉट, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल कि सचमुच में स्टार्स बहुत छोटे होते हैं. बिल्कुल भी नहीं. सन एक खुद एक स्टार है और आप देख सकते हैं वो कितना बड़ा है. राइट, आप उसका साइज़, उसका मास, उसका सब कुछ जान सकते हैं बेसिकली. बट ये जो स्टार्स होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सन सबसे बड़ा स्टार है. सन काफ़ी पास है इसलिए वो हमें बड़ा नज़र आता है.
बट देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स विच आर सो बिग, जो कि सन से भी बहुत ज़्यादा बिग हो सकते हैं. मतलब इट कैन बी हैपन कि भाई सन उसमें समथिंग लाइक 100 सन उसमें चले जाएं. इतना ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट. बट दे डिपेंड मे बी कि वो हमारी गैलेक्सी में है, दूसरे गैलेक्सीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं. इट कैन हैपन, राइट. So basically now you know all the things about the universe, little bit of thing. Now you know the Big Bang theory also. In the next lecture हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स, जिसमें से प्लैनेट्स की बात कर सकते हैं, राइट. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लैनेट्स ऑल्सो. हर एक प्लैनेट को बारे में हम डिस्कस करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स विच आर सो मच यूजफुल टू यू. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर हियर नाउ. ऑलराइट. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.